Good morning, friends. Now today we will start immunity. Before immunity, we have discussed different type of disease, their symptoms, and how to cure, like protozoa disease, bacterial disease, viral disease, and then fungal disease, preventions and control of infectious disease. We have already discussed. We have already discussed about airborne disease, vector-borne disease, and so on. Clear? Now today's topic is immunity. Immunity means defense mechanism of body. So what is the meaning of immunity? Defense mechanism defense mechanism of body. There are basically we can define immunity term. It is the ability of organisms to resist or defend itself from the development of a disease. Again, I will repeat it. It is the ability of an organisms to resist or defend itself from the development of a disease is called immunity. Where immunity, it is two type basically. Immunities are two type. Okay, students, so we have discussed about definitions of immunity. It is actually, it is ability it is ability So, student, immunity definitions. What is the definitions of immunity? It is ability of the host to fight the disease causing organisms confirmed by the immunity system is called immunity. Or in easy word, we can say it is ability of an organisms to resist मतलब अपोज करना, resist और defend itself from the development of disease. Development of disease. बॉडी में डिजीज डेवलप ना हो, इसके लिए बॉडी जो वर्क करती है और रिसिस्ट करती है, इट इज़ ड्यू टू their immunity system. So I think student, you have already clear it. What is the immunity? Immunity is a ability of the host to fight disease causing organisms confirmed by the immunity system is called immunity. Basically immunity, it is divided in two. इम्यूनिटी कितने में डिवाइड की है? टू में. फर्स्ट इन्नेट इम्यूनिटी, सेकेंड वन एक्वायर्ड इम्यूनिटी. फर्स्ट innate immunity. What is innate immunity? Basically innate immunity is called as inborn immunity. Clear? Inborn immunity मतलब बर्थ के साथ रहती है. Clear? It is present from the birth and the inherited from parents. हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स पे इनहाइटेड हो रही है. क्लियर? एंड सेकंड क्या है? इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस. मीन्स यदि कोई पर्टिकुलर एक डिजीज़ है तो उससे ये फाइट नहीं कर पाएगी. कॉमन इम्यूनिटी है. ठीक है. थर्ड, इट इज़ अकॉम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स to entry of foreign agents. Four type of barriers are basically innate immunity. It is first inborn immunity,
Second, it is non-specific type of defense mechanism. And third, basically क्या है, it is फास्ट इफेक्टिव. थर्ड क्या है, ये फास्ट इफेक्टिव होती है, फास्ट इफेक्टिव. ठीक है, बट नॉन लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक नहीं चलती. फास्ट इफेक्टिव. फोर्थ, नॉट लॉन्ग और नॉट लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है, ज़्यादा समय तक नहीं रहती है ये, कि लंबे समय तक नहीं चलती. सो देयर आर some the characteristic feature of innate immunity. First, it is non-specific type of defense. It is present at the time of birth. Third, it is accomplished by providing different type of barriers to entry of foreign agent into our body. मतलब ये बहुत तरीके के barriers हमारी body पर provide करती है जिससे कि foreign agents body में enter ना हो सकें. Basically, innate immunity, it is basically 4 type. The mode of or types of innate immunity type, it is basically 4 type. First one is physical barrier. First क्या है, physical barriers. Physical barriers basically skin on our body is the main barrier. स्किन को आप डिफेंस मैकेनिज्म पर ले सकते हो. ठीक है, स्किन इन आवर बॉडी इज अ मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. स्किन में जैसे कोई बाउंड होता है तो माइक्रो उसको कहते हैं ना कि ढक के रखो, अदरवाइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें एंटर हो जाएंगे. तो स्किन एक बैरियर प्रोवाइड करती है जिससे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर नहीं हो सकते हैं. So it is called as physical barriers. Where the barriers which do not allow pathogens and foreign agents to enter the body is called physical barriers. Examples क्या है physical barriers में? Skin. Second, mucus. Mucous membrane. Clear student? Mucous membrane of digestive system, respiratory system, urinogenital tract, trapping microorganisms. So these are the examples, skin and mucus. Mucus कैसे करता है? Mucus basically mucous membranes होती हैं जो particularly पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती. जस्ट लाइक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल कैविटी में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है ना. तो इस तरीके की बॉडी में सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. स्किन तो पूरी होल ऑल ओवर बॉडी पर रहती है जो कि एक फिजिकल बैरियर है, गुड फिजिकल बैरियर. एंड इन स्पाइट ऑफ स्किन देयर आर अदर फिजिकल बैरियर्स. इट इज़ म्यूकस. ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट. तो यहाँ पे कुछ म्यूकस सेल्स होती हैं विच हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. म्यूकस किस में हेल्प करता है? हेल्प ट्रैपिंग microorganisms. Clear? So this is the physical barrier. Second one is physiological barrier. This one is physiological barrier. Acid in the stomach, saliva in the mouth, tears of the eyes. मीन्स जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, when you eat something then it will be go in your stomach at the time of when your food reach in stomach as a stomach produce acid. ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हम कोई एक मनपसंद फूड और एपिटाइजिंग फूड देखते हैं, माउथ में एक सलाइवा क्रिएट होने लगता है. ठीक है, इसी तरीके से आइज़ में
टीयर्स, जैसे ही आंखों में कुछ जाता है टीयर्स अपने आप से प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो दिस ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ. दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. ठीक है, बॉडी में जब कुछ चेंज होता है, कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, तो उसके थ्रू जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को रोकते हैं. थर्ड वन इज cellular barriers. Cellular barriers means certain type of leukocytes. Certain type of leukocytes like WBC of our body, like polymorphonuclear leukocytes. टर्म्स इसको लर्न कर लीजिए आप लोग. पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL, न्यूट्रोफिल्स and monocyte and neutrophil type of lymphocytes in the blood, as well as macrophagus in tissues can phagocytes and destroy microbes. In macrophagus terms, it will be come in 2020 फाइनल एग्जामिनेशन. सो अभी बैच जो अभी हमारा 12th का निकला है, माइक्रोफेगस से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें आया हुआ है. ठीक है, तो ये सेलुलर बैरियर्स हैं. सेलुलर बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड में रहता है. बेसिकली न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल, डेंड्राइट सेल, मैक्रोफेगस सेल, WBC. ठीक है, ये ऑलरेडी फॉरेन पार्टिकल्स को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये उसको ख़त्म कर देते हैं. तो दीज आर द सेलुलर बैरियर्स जो सेल्स में होते हैं, सेल के फॉर्म पर होते हैं. WBC वाइट ब्लड सेल्स हैं. ठीक है, मास्ट सेल्स है, डेंड्राइट सेल्स है, मैक्रोफेगस सेल्स हैं. दीज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड इट इज़ हेल्प टू डेवलप इम्यूनिटी. ठीक है, तो दिस इज सेलुलर बैरियर्स. क्लियर हो गया स्टूडेंट? जो सेल के थ्रू जो बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री प्रिवेंट हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर बैरियर. नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनिन बैरियर. फोर्थ वन साइटोकाइनिन बैरियर. हाउ वी विल डिफाइन साइटोकाइनिन बैरियर? वायरस इन्फेक्टेड सेल secrete protein called interferons which protect non-infected cell from future viral infection. Means cytokinin barriers, it is already present in our body, or it is a type of innate immunity. In this type of innate immunity, there are some virus infected cell, वो एक प्रकार का एक सिक्रेशंस देती हैं, और वो सिक्रेशन एक इंटरफेरॉन है. इंटरफेरॉन मतलब जो दूसरे हेल्दी सेल को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करे. ठीक है, तो ये इंटरफेरॉन्स किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं? ये प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सेल के थ्रू जो ऑलरेडी वायरस इन्फेक्टेड हैं. जो सेल ऑलरेडी वायरस इन्फेक्टेड हैं वो एक प्रोटीन सीक्रेट कर रही हैं. ये प्रोटीन इंटरफेरॉन है, एंड दिस इंटरफेरॉन प्रोटीन हेल्प टू नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन. जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उसको आगे वायरस इन्फेक्शन न हो, उससे ये इंटरफेरॉन्स हेल्प करते हैं. तो दीज आर द इन्नेट इम्यूनिटी. सो आई थिंक यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फर्स्ट immunity, you just understood what is the immunity. It is defense mechanism of the body. There are different type of immunity system in our body: innate immunity system, adaptive immunity system, or acquired immunity system. This time we are discussing innate immunity system. Innate immunity system are those system which is developed during birth, or it comes in next generation by birth or by inherited by their parents. Secondly, innate immunity is not specific type of defense. कोई पर्टिकुलर टाइप का यदि इन्फेक्शन होता है तो innate immunity is not sufficient. क्लियर? कॉमन माइक्रोब्स को तो ये कंट्रोल कर लेगा, लेकिन स्पेसिफिक माइक्रोब्स को, स्पेसिफिक पैथोजेंस को
कंट्रोल नहीं कर पाता है इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, इट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्लियर। और बेसिकली क्या है, इट इज़ फास्ट इफेक्टिव, ठीक है, फास्ट इफेक्टिव होता है बट ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्लियर। तो इननेट इम्यूनिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, इट इज़ बेसिकली 4 टाइप: फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, cellular barriers, and fourth one is cytokinin barriers। ये बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। फिजिकल बैरियर्स मतलब हमारी स्किन के फॉर्म पर और म्यूकस के फॉर्म पर, बॉडी में म्यूकस ऑलरेडी सीक्रेट होता रहता है, ठीक है, बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट पर। तो ये म्यूकस का वर्क क्या है कि कोई भी माइक्रोब्स या फॉरेन पार्टिकल्स है उसको ये ट्रैप कर लेता है। तो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल बैरियर, क्लियर। म्यूकस बेसिकली एपिथेलियल सेल के थ्रू प्रोवाइड होता है, जो कि एक एपिथेलियल सेल की लाइनिंग होती है और ये म्यूकस प्रोवाइड करती रहती है। सेकंड, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डेवलप हो रही है, like develop acids in our stomach, saliva in our mouth, tears from eyes, these all are physiological barriers, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, इट इज सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स मीन्स सेल के थ्रू जो डिफेंस मैकेनिज्म हो रही है, सेलुलर नेम से ही क्लियर हो रहा, बाई सेल, क्लियर। और इसमें डिफरेंट टाइप की सेल जो हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क करते हैं। WBC आप लोगों को बहुत पहले से पता है कि WBC जो है एक नेचुरल इम्यूनिटी को डेवलप करने वाला सिस्टम है। एड्स का जो वायरस होता है वो हमारी इम्यूनिटी सेल को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करता है, क्लियर। तो सेलुलर बैरियर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आती हैं। द एग्जाम्पल्स, न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल, डेंड्राइट सेल, मैक्रोफेगस, ठीक है, मोनोसाइट्स, दीज आर द सम cells which is present in our blood and improve in our immunity system, ठीक है। माइक्रोफेगस जो है ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करता है। फैगोसाइटोसिस मतलब फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। नेचुरल किलर सेल है, ये क्या है, नेचुरल किलर सेल। मैक्रोफेगस बेसिकली, मैक्रोफेगस में एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न बैक्टीरिया वायरस को ग्रैस्प कर लेता है, समझ में आया। एक पर्टिकुलर एक उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर बेसिकली सेंसेशन होता है जो कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस को जैसे ही ये रिकॉग्नाइज करता है उसको ये पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। तो दिस इज़ मैक्रोफेगस। डेंड्राइट सेल में भी इसी तरीके से कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और बैक्टीरिया को क्या कर लेती हैं, डाइजेस्ट कर लेती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने के बाद वो दूसरे बॉडी के एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम को एक सिग्नल सेंड कर देती हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो बॉडी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। तो इननेट इम्यूनिटी जब सफिशिएंट नहीं होती है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इननेट इम्यूनिटी के बाद जो सेकेंड इम्यूनिटी है इट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आई जस्ट गिव यू सम basic points about acquired immunity. Acquired immunity, it is not present at the time of birth. Acquire का मतलब ही समझ रहे हो, जो हम अपनी लाइफ साइकिल में acquired करते हैं, ठीक है। तो ये बर्थ के समय पर नहीं होती है। तो इट इज़ नॉट प्रेजेंट फ्रॉम अ बर्थ एंड डेवलप ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम, और हर एक इंडिविजुअल में उसकी लाइफ टाइम पर ये डेवलप होती रहती है। तो इट इज कॉल्ड एज एडॉप्टिव, क्या कहेंगे इसको, एडॉप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एंड इट इज डेवलप अकॉर्डिंग पैथोजन। तो इसको सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया, इट इज पैथोजन स्पेसिफिक, इट इज
pathogen specific. Second, it has the ability to distinguish diverse type of foreign molecules or antigens. ये पर्टिकुलर टाइप की इम्यूनिटी है जो पर्टिकुलर टाइप के पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज कर लेती है, एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर लेती है, फॉरेन मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज कर लेती है. ठीक है. इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मेमोरी. ये मेमोरी बेस्ड होती है. समझ में आया. जैसे एक बार यदि उसका एक पैथोजेंस बॉडी में एंटर हो गया तो जो एंटीबॉडीज़ जो डेवलप होंगे उनमें मेमोरी एक स्टोर हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम यदि वो पैथोजेंस फिर से एंटर होता है तो मेमोरी बेस्ड जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पहले से ही अटैक करना शुरू कर देंगे. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी बेस्ड. क्लियर. नेक्स्ट क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नेक्स्ट, इट मीन्स अवर बॉडी व्हेन इट्स एनकाउंटर अ पैथोजेंस फॉर अ फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स. तो बॉडी में जो पहला रिस्पॉन्स हो, फर्स्ट रिस्पॉन्स है, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स है. प्राइमरी रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जो फर्स्ट टाइम किसी एंटीजेंस के बॉडी में एंटर होने पर जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं. तो फर्स्ट टाइम जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं, जो वो रिस्पॉन्स दे रही हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स. प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स में मेमोरीज होती है. सो प्राइमरी रिस्पॉन्स इज ऑलवेज लो इंटेंसिटी. दैट्स अ रीज़न कि फर्स्ट टाइम कोई डिजीज़ बहुत देर से बॉडी के अंदर देर तक रहती है और सेकेंड टाइम फिर वो बहुत जल्दी ख़त्म होने लगती है. तो फर्स्ट टाइम जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है हमेशा कैसा होगा, लो इंटेंसिटी, क्योंकि वो डेवलप हो रही है. ठीक है. एंटीबॉडीज़ वो डेवलप हो रही है. जब वो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएगी, दिस इज़ मेमोरी बेस्ड, और नेक्स्ट टाइम यदि वो सेम पैथोजन सेंटर होगा तो वो इमीडिएट इफेक्ट देना शुरू कर देगी. क्लियर. ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद आ सेम पैथोजेंस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी और एन एमिनेस्टिक रिस्पॉन्स. तो सेकेंड जो रिस्पॉन्स होगा, दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिफाइड, बहुत हाईली इंटेंसिफाइड होगा, और दिस इज कॉल्ड एज एन एमेनेस्टिक रिस्पॉन्स. क्लियर. एन एमेनेस्टिक रिस्पॉन्स. दिस इज ascribed to a fact in our body appear to have a memory of the first counter. ये शो करता है कि हमारी बॉडी में फर्स्ट मेमोरी जो उससे हुई है वो मेमोरी स्टोर है. उसी के हिसाब से वो सेकेंड टाइम बहुत इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स देता है. सो दिस इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नाउ we will discuss acquired immunity in detail in next lecture. Thank you, student. Have a nice day.